privilege for the retired officers of Indian Oil also that you have invited us to this gathering for a very illuminating talk by the eminent doctors. And it will be our great pleasure to extend our warm welcome to Mr. Raina on behalf of IROA. Welcome you all the elite members of the IOCL. I'm feeling so privileged to be standing in front of you and discussing some basic problems in the elderly age group regarding bone and joint health. We'll be discussing about what is the importance of bone and joint health at this stage. We need to prevent falls and fractures during this stage, which are very common and debilitating for all the patients in the elderly age groups. And if you have a very good bone strength and good joints, then that it enables every individual to maintain a very active lifestyle, so that to be independent and doing all the activities on their own. And it plays a vital role in reducing the uh, risk of chronic conditions such as osteoporosis and osteoarthritis. So the common conditions which are affecting bones at the elderly age group is osteoporosis. What is osteoporosis? Osteoporosis is basically porous bones. When new bone formation stops at this stage, or maybe more of the bone which is already there, which is coming out of the normal bone, leading to a bone which is not very strong, so that it is not able to sustain the daily activities which a person performs. How do we find that a person is suffering from osteoporosis? It is it's a silent disease. Usually people don't come across and know that they are suffering from osteoporosis. All of us has been, especially females, they are more prone to osteoporosis because of the postmenopausal age, where because of the hormonal imbalance, females are more prone to suffering from osteoporosis. And usually it is a silent disease and is relatively undiagnosed until unless patients come to the hospital and complains of like loss of height because of the vertebral compressions. Patients have decreased height over a period of time, or maybe they are walking with a stooped posture, or maybe they be having back pain. So this is the first sign when one can come across patients who have been suffering from osteoporosis. So, how to prevent osteoporosis? It is basically a combination of lifestyle modification and certain medications which are to be taken on a regular basis. Each one of us is bound to suffer from osteoporosis over a period of time. So, lifestyle modification and medication. So, we have been, everyone of us know that vitamin D and calcium intake is of utmost importance at this stage. So one should always be getting supplements and keep checking their levels. If vitamin D deficiency, which is a very common finding in each one of us, because those who are living in metros, they are hardly exposed to proper sunlight, and sunlight is the primary source of vitamin D. So most of us are basically suffering from vitamin D deficiency. So we need to check levels of vitamin D plus calcium, and adequate intake accordingly is of importance. Apart from that, prevention for osteoporosis is regular exercises, and there should be fall prevention strategies that we should not be able to we should be able to maintain our postures well. We should be doing regular exercises so that our muscle mass also is supporting our uh, locomotive system, so that we can avoid falls during our daily activities. Apart from calcium and vitamin D, there are certain medicines which have been used over the years with success for the treatment of osteoporosis. I don't know if how many of us have been prescribed some bisphosphonates. So a medication which is a monthly dose, or a 6 monthly dose, or maybe an injection which has been given in a yearly dose. So yearly dose injection is basically is a zoledronic acid.
So few of us must have taken this injection on a regular basis, yearly basis. So this medicine basically prevents the bone from it prevents the whatever the bone is already, the stock is there, it prevents to maintain that stock. Whereas certain other medications, some hormonal therapies, which are there over the last few years, such as teriparatide. So it's an injection which has to be given on a daily basis, a subcutaneous injection. This injection is mainly to improve the bone mass. So it increases the bone formation. So there are two different modes of treatment for osteoporosis. One is avoiding whatever the bone is already there, उसमें से बाहर ना ज़्यादा निकले, और कुछ नया डिपोजिशन हो उसके लिए हार्मोनल थेरेपी जैसे कि टेरिपेराटाइड। तो फिर कार्टिलेज खत्म होने की वजह से बोन्स आपस में टकराती हैं, और जहाँ बोन्स टकराएंगी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा और फिर पेन होगा। उसी चीज़ को हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। और आर्थराइटिस बेसिकली कॉमनली जो आर्थराइटिस हम लोग सफ़र करते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। Other common arthritis which people know is rheumatoid arthritis. Many of us must have come across with this term. Rheumatoid arthritis एक specific type की arthritis होती है जो कि autoimmune disorder होता है। अगर कुछ patients जिनका कि RA factor positive है या NTCCP एक अदर टेस्ट होता है वो पॉजिटिव है, तो वो लोग rheumatoid arthritis के पेशेंट्स होते हैं और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है। पर बेसिक ट्रीटमेंट आर्थराइटिस के लिए भी हमको कार्टिलेज को रीफॉर्म करना है और एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाना है। तो सिम्टम्स हमारे आर्थराइटिस के पेन होगा, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग होगी, और हमारे मोशंस जितने भी जॉइंट्स पर होंगे वो ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट very easy to diagnose. An X-ray, simple X-ray will just suggest that there is some arthritis, joints, cartilage degenerate कर गया है, and there are certain blood tests also available. Apart from that, X-rays, at times CT scan and MRI are also prescribed. So again, arthritis को prevention करने के लिए, to slow down the disease on a regular basis, we have to have some supplements like cartilage building medications. Over the years, chondroitin sulfate, glucosamine, हम सब लोगों ने खाया होगा, जिन लोगों सबके जो लोग विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स में, they have been using chondroitin sulfate and glucosamine. These are medication which are to reform some sort of a cartilage. आज की डेट में कुछ और मेथड्स आ गए हैं, जैसे मेडिसिन आई हैं जिसमें कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं। कोलेजन पेप्टाइड्स हमारे कार्टिलेज को रिफॉर्म करती है और एक लेयर बनाती है उसके ऊपर, जिसकी वजह से हमारा कार्टिलेज कुछ रीजनरेट होता है टू एन एक्सटेंट। इट डजंट मेक इट एब्सोल्युटली जो हम 20 साल के हैं या 30 ईयर्स के हैं उस स्टेज तक लेके आएगा, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर 10% इम्प्रूवमेंट भी अगर होता है तो हमारा सिम्टम्स इम्प्रूव करते हैं, हमारा बैलेंस इम्प्रूव करता है, हम लोगों की एक्टिव लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाती है। ये ट्रीटमेंट के अलावा हम लोग और जो अवेलेबिलिटी है, कुछ इंजेक्शंस हम लोग यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स इंजेक्शन होते हैं जॉइंट्स में। यूजुअली दीज इंजेक्शंस कैन बी गिवन कॉमनली इन द नी जॉइंट, मे बी अदर जॉइंट लाइक शोल्डर जॉइंट। ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस होते हैं, इनके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। साथ में कुछ विस्को सप्लीमेंटेशन जो कि लुब्रिकेशन के लिए दिए जाते हैं, सो टू लुब्रिकेट द जॉइंट विच आर ऑलरेडी डिवॉइड ऑफ सम साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि जब कार्टिलेज ही नहीं होता है तो साइनोवियल फ्लूइड भी नहीं बनता है, प्रॉपर लुब्रिकेशन भी नहीं होता है, उसके लिए हम लोग फिर लुब्रिकेंट्स डालते हैं। लेटेस्ट ट्रीटमेंट में आ गया है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और उसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स। ये इनके रिजल्ट्स भी अभी ये नए चीज़ें हैं और रिजल्ट्स इनके एनकरेजिंग हैं, एंड ओवर द इयर्स होपफुली व्हेन ये थोड़े से डिफाइन हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। और मे बी जब हम टर्मिनल स्टेज में पहुंचते हैं उससे पहले अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो प्रोबब्ली वी कैन अवॉइड द लास्ट स्टेज वेयर वी एंड अप इन सर्जिकल इंटरवेंशन। सो सर्जरीज में बहुत सारे पेशेंट्स का नी रिप्लेसमेंट्स होता है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, दीज आर ऑल इंडिकेशन वेयर द आर्थराइटिस हैज ऑलरेडी रीच्ड स्टेज 3 और स्टेज 4, और डेली एक्टिविटीज इतनी अफेक्ट हो गई हैं, सोशल एक्टिविटी, सोशल लाइफ बंद हो गई है, people don't want to mingle with other colleagues or friends or relatives, और घर में बैठना पसंद करते हैं, एंड ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं तो इट इम्पैक्ट्स द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ अ पेशेंट। सो बिफोर दिस स्टेज रीचेज वी हैव टू प्रिवेंट इट, वी हैव टू सप्लीमेंट। और इसके अलावा
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपनी एक्टिविटी लेवल्स को बढ़ा के रखेंगे, मेंटेन करेंगे एक पोस्चर, एक रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम रेगुलरली करते रहते हैं तो कार्टिलेज अपने आप में रीफॉर्म होता है। अगर हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं तो हमारा कार्टिलेज भी नहीं बनता। जब हम ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ द वीक बोन्स एंड वीक जॉइंट्स व्हेन वन इज नॉट एबल टू मेंटेन देयर पोस्चर, इन सब की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो पेशेंट्स को, एल्डरली पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जब हम मेंटेन नहीं कर पाते पोस्चर तो बहुत फ्रीक्वेंट फॉल्स होते हैं और एट टाइम्स पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, उनके फ्रैक्चर्स भी बहुत छोटी चोटों से, ट्रिवियल इंजरीज हुई और फ्रैक्चर हो गया। कॉमन फ्रैक्चर्स एल्डरली पेशेंट्स में होते हैं रिस्ट फ्रैक्चर्स या फिर हिप फ्रैक्चर्स। रिस्ट फ्रैक्चर्स फिर भी ऐसे फ्रैक्चर्स हैं जिनको कि आप यूजुअली कंजर्वेटिव मेथड से आप ट्रीट कर सकते हो, बट हिप फ्रैक्चर्स ऐसे हैं जिसमें कि it is very difficult to make such bones unite at the age, at the elderly stage. So the only treatment is surgical treatment. So उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमको सारी चीज़ों का प्रिवेंशन करते रहना है। फ्रैक्चर का जैसे मैंने बताया कि सारा डायग्नोसिस होगा, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में हमारे प्लास्टर्स या इम्प्लांट्स लगेंगे, सर्जरी होगी, स्क्रूज एंड प्लेट्स और मे बी रिप्लेसमेंट सर्जरीज ऑफ द हिप जॉइंट। So coming to the lifestyle modification of our problems which we encounter during the stage of during the elderly stage, so सबसे important है हमारा diet and supplements, कैल्शियम on a regular basis उसकी आप चेक कराएंगे, and vitamin D। बेसिकली कैल्शियम हमारे बोन स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और विटामिन डी का रोल होता है हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। सो वट एवर कैल्शियम वी हैव बीन टेकिंग, अगर हमारा जो विटामिन डी ही नहीं होगा तो हमारे कैल्शियम को वो रिजॉर्ब भी नहीं करेगा और वो डिपॉजिट भी नहीं करा पाएगा। अपार्ट so shell kale is a calcium, yeah, with vitamin D. So many of the formulations these days are coming in combination with shell kale, in combination with calcium, apart from then some more vital minerals along with vitamin D, because vitamin D usually सब लोग भूल जाते हैं खाना, और एक टैबलेट में अगर मिल जाए तो that actually makes it so convenient for the patient to take। तो विटामिन डी भी हमको रेगुलर बेसिस जो हमारी डोजेज अवेलेबल हैं एक सिंगल टैबलेट में, वो बेसिकली डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। और अगर हम प्लेन कैल्शियम लेते हैं तो हमको एक सप्लीमेंट जो कि ज़्यादा लेना पड़ता है, जिसमें कि हमारे कुछ कैप्सूल्स ऐसे अवेलेबल हैं या हमारे सिरप्स भी अवेलेबल हैं या एक पाउचेज़ हैं जो कि हम अगर लेते हैं तो उसमें 60,000 यूनिट्स हमारे चले जाते हैं एक ही पाउच में, और ये जो हम डेली टैबलेट में जो ले रहे हैं वो 2000 यूनिट्स जाते हैं। So, सर वो मल्टीविटामिन जो बेस्ट है वो लोग जो कंपनी जिन्होंने बनाया वो बताते हैं, और सारे बेस्ट होते हैं। अल्टीमेटली हमको कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए और एसेंशियल मिनरल्स चाहिए जो कि हमारे इस बोन के स्ट्रक्चर को रीफॉर्म करें। सभी बेस्ट हैं सर। अल्टीमेटली हर पेशेंट के लिए अलग टाइप के कैल्शियम्स भी होते हैं, जैसे कि किसी में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, किसी में कैल्शियम साइट्रेट होता है, किसी में कैल्शियम ओरोटेट होता है। तो ये जो फॉर्मुलेशंस हैं ये हर पेशेंट के लिए अलग होते हैं। कुछ पेशेंट्स को कैल्शियम खा के कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन खासकर कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। अदर फॉर्मुलेशन है जैसे कि कैल्शियम साइट्रेट है, ये यूजुअली कॉन्स्टिपेशन नहीं करता, इट इज़ गट फ्रेंडली होता है। सो हर फॉर्मुलेशन हर पेशेंट के लिए थोड़ा सा अलग है, बट अल्टीमेटली हमारा जो एलिमेंट है जो मोर इम्पॉर्टेंट है वो है कैल्शियम। गोइंग इन द मार्केट जहाँ पे हम अलग अलग लैब्स में जब टेस्ट कराते हैं तो कुछ लैब्स जो उनका यूनिट अलग होता है उसमें 30 to 100 की नॉर्मल वैल्यूज़ होती है। हमको 100 की तरफ नहीं रखना है, हमको 50 के आसपास रखना होता है। सिमिलरली कुछ और वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हम लोग लाल पैथ में अगर हम टेस्ट कराते हैं तो उनकी यूनिट्स 75 to 250 होती है, तो उसमें भी हमको 100 के आसपास या 150 के पास रखना है। अपोलो लैब यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करती है वो है 30 to 100 नॉर्मल रेंज होती है, और यूजुअली ये 30 to 100 वाली रेंजेस फॉलो होती हैं वर्ल्ड वाइड। तो
नो नो सर, ये हमारी नॉर्मल वैल्यूज है विटामिन डी की सीरम में। हमारा जो ब्लड में हम जब हम विटामिन डी को मेजर करते हैं तो हमारी नॉर्मल वैल्यूज 30 to 100 के बीच में होनी चाहिए। तो हम जो नॉर्मल मान के चलते हैं कि हमको 100 की तरफ नहीं रखना है, बिकॉज 100 से ऊपर टॉक्सिसिटी होती है, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। सो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बताया कि आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग विटामिन डी ऑन ए रेगुलर बेसिस, और जो 60,000 यूनिट्स वाले कैप्सूल्स या सैशे अवेलेबल हैं आप उनको ऑन अ डेली बेसिस लेते रहें, ऐसा नहीं होता। द यूजुअल रिकमेंडेड डोज इज वंस अ वीक फॉर a few weeks and then followed by monthly intake of such capsules। और कभी कभी जब बहुत विटामिन डी डेफिशिएंट होता है, जैसे कि अगर 30 to 100 नॉर्मल है और आपका वैल्यूज आती हैं 2, 3, 5, 7 something of that range, then at this stage you must be suffering from some bone pains or difficulty in walking around। उस केस में हम लोग इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एक इंजेक्शन होता है अरेकिटॉल। तो एक इंजेक्शन हमने अगर लगाया तो यहाँ जो हम कैप्सूल में 2000 दे रहे थे पर डेली डोज और एक सैशे में दे रहे थे 60,000, वैसे ही एक अरेकिटॉल इंजेक्शन से 6 लाख एक साथ चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 6 लाख यूनिट्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली लगाएंगे, आप वंस अ वीक लगेगा, उसके बाद एक बार और लग सकता है, और उसके बाद हमको चेक भी करना है कि वैल्यूज हमारी कहाँ पहुँची हैं। या सर उसके लिए तो सर सारी मेडिसिन डॉक्टर्स के एडवाइस से लेनी चाहिए। या अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर हम लोगों को पता लग गया कि हमारा विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो हम जो अपने आप ले सकते हैं वो मंथली बेसिस पे तो आप जिंदगी भर ले सकते हैं। दैट वोंट कॉज एनी टॉक्सिसिटी। दिस इज फॉर श्योर कि अगर महीने में एक बार आप विटामिन डी ले रहे हैं और तो मे बी आपका नॉर्मल लेवल पहुंचेगा, या ये तो नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली टॉक्सिसिटी नहीं होगी। एक बार आपने विटामिन डी डेफिशिएंसी पता की, उसके बाद आप नॉर्मल भी आ गए, उसके बाद ज़िंदगी भर भी आप एवरी मंथ लाइफ टाइम एक कैप्सूल आप ले लीजिए 60,000 वाला, दैट इज सफिशिएंट। सर ये विटामिन डी के डी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म और इनएक्टिव फॉर्म होता है। हमारा जो विटामिन डी है ये बेसिकली बहुत सॉल्युबल विटामिन नहीं है, तो इसको ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। इसी में विटामिन D2 और D3 होता है बेसिकली। तो हम D3 वैल्यू चेक करते हैं जो कि एक्टिव फॉर्म है हमारा। उस एक्टिव फॉर्म की विटामिन डी की जो वैल्यूज है वो है 30 to 100। So very difficult to say because these are the companies, they may suggest you, and 150% of the daily requirement is at times required when one is already deficient। अगर हम deficient नहीं है तो हमको 150% चाहिए ही नहीं। या नहीं, सेंट्रम इज ए गुड मेडिकेशन। 150% हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंस है कि हमारा गट कितना उसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है, बिकॉज जैसे जैसे हमारी एज होती है उसके साथ से हमारा एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो अगर हमने 150% लिया है तो मे बी 100% ही उसमें से एब्जॉर्ब होगा, बिकॉज हम लोग जब रेगुलरली भी लेते रहते हैं उसके बावजूद भी व्हेन वी कीप चेकिंग एवरी 3 मंथली, अगर हम विटामिन डी चेक करते हैं एंड वी ऑल मेनी अ टाइम्स वी फाइंड दैट स्टिल विटामिन डी इज डेफिशिएंट। सो अगेन ऑप्शन हमें जो लेना है वो विटामिन डी के लिए, अगर अगर आपको धूप मिल रही है जो कि अच्छी धूप है और उसमें अगर हम बैठ पाते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा सोर्स विटामिन डी का हमारा यही है। वो एग्जैक्टली। सो जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, सर आप अगर 1 घंटा भी बैठते हैं दैट इज गुड एनफ, बट यूजुअली विंटर्स में हम लोग अंदर रहते हैं, गर्मी में भी हम सब अंदर रहते हैं। पॉल्यूशन इतना है कि हम लोग बाहर सनलाइट से एक्सपोजर कर नहीं पाते, और जितना पॉल्यूशन है लोग एल्डरली पर्सन को बोलते हैं घर से बाहर मत निकलो। विंटर्स में कभी वायरल इन्फेक्शन इतने सारे बैठे हुए हैं, तो उस चक्कर में यूजुअली विटामिन ये जो सनलाइट का एक्सपोजर है बहुत मिनिमाइज हो गया है, स्पेशली एनसीआर में या मेट्रोज में जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो विटामिन डी हम लोगों के पास पहुँच ही नहीं पाता। इवन इफ वी सिट इन सनलाइट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, तो यूवी रेज हमारे पास पहुँचती नहीं है, जो कि हमारी सोर्स होती है विटामिन डी की। वो यस, कहीं से भी स्किन से एक्सपोजर होगा यूवी रेज का, तो हमारा जो स्किन है वो विटामिन डी
बना लेता है। सर यूजुअली फेस एंड हैंड्स ही एक्सपोज होते हैं, क्योंकि और तो कोई पार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन के सर हमारे सिम्टम्स क्या हैं। जिंक, मैग्नीशियम, दीज आर आल्सो एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल मिनरल्स, जो कि हमारे बोन के मेटाबॉलिज्म को, बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम डेफिशिएंट हैं, और यूजुअली ये जो कैप्सूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ये भी इनकी कुछ कुछ क्वांटिटी जिंक की भी, कुछ मैग्नीशियम की, और विटामिन B12 आल्सो, विच इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन। यूजुअली दो विटामिन जैसे विटामिन D एंड विटामिन B12। आज हम बोन की बात कर रहे थे तो विटामिन B12 के बारे में नहीं किया, अदरवाइज मेनी ऑफ अस आर विटामिन B12 डेफिशिएंट आल्सो, स्पेशली दोज हु आर वेजिटेरियन, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है विटामिन B12 की। सो अभी उसी पे मैं आ रहा था कि एग्जैक्टली सर, जब हम यंग होते हैं, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी तरह से हमारी न्यूट्रिशियस डाइट होती है, तो हम सब मेंटेन कर रहे होते हैं। जब हम एक ऐसी एज पे आते हैं जब हमारा डाइट थोड़ा सा कम हो जाता है, और हम पाते हैं अपने ब्लड टेस्ट में कि ये सब डेफिशिएंट है, तो हमें लेना चाहिए। यस, जितनी एक्टिविटी कम होगी उतना ही बोन को एक मैसेज चाहिए कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बोन को पता लगता है कि ये बंदा अभी तो आराम कर रहा है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो भी नहीं बंद पड़ती, तो वो भी सो जाती है। सो इट इज़ ए प्रॉपर बूस्ट मिलता है जितना आप एक्टिविटी लेवल अपना ज़्यादा करेंगे, जितना एक्टिव लाइफस्टाइल बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई वॉज कमिंग टू अ बैलेंस डाइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो डाइट एंड सप्लीमेंट्स है, अगर हम एक अच्छी डाइट लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो हमको सारे वाइटामिन्स, कैल्शियम और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलती हैं। तो अगर हम ये सब ले रहे हैं और हम डेफिशिएंट नहीं हैं, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमको बहुत सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप इस जनरेशन की बात करते हैं, आपकी इससे पिछली वाली जनरेशन कोई कुछ नहीं लेती थी उनको। हाँ, और आप भी यूजुअली इतने सालों तक नहीं, अब जैसे रिक्वायरमेंट है, इससे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर, प्रोबब्ली उन्होंने कुछ नहीं लिया होगा कभी, बिकॉज वहाँ पर सनलाइट इतना एक्सपोजर था। यूजुअली सब लोग बाहर एक्सपोज रहते थे, और द लेवल ऑफ एक्टिविटी उनकी अलग थी। हम लोग सब लोग अलग तरीके से काम करते हैं, ये जनरेशन, और आपके बाद हमारी जनरेशन, और उसके बाद उसकी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग जो घर में बैठ के ही सारे काम करते हैं। तो हो सकता है उनको यंग एज में भी सारे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी। Depends upon के what is your requirement. If your requirement is on a daily basis, you take them accordingly. Else, after a while, जब आपका requirement कम हो जाता है, तो आप alternate days पे भी ले सकते हैं। उसी पे मैंने जैसे लिखा है इसमें यहाँ पर, कुछ जैसे कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारे नट्स हैं, उसमें हम ले सकते हैं। विटामिन ई के फिर कैप्सूल्स आते हैं, तो ये भी हमारे बोन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर वेजिटेरियन पीपल में। नॉन वेज पेशेंट जो लोग लेते हैं, उनको एडिक्वेट विटामिन मिल जाते हैं और प्रोटीन्स मिलता है, तो वो प्रोटीन मसल मास सारे कुछ बनाता है। मसल मास बनता है तो हमारे बोन्स भी अकॉर्डिंगली स्ट्रांग होते हैं। जब मसल बनेगा तो बोन भी ऑटोमेटिकली सब, तो एक घर में जब कोई चीज़ बढ़िया होती है तो बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। Yes, sir. So tendons are what are tendons? Tendons are the end part of a muscle. तो जो टेंडन्स होती है वो एक बोन पे आके अटैच होती है, और जब मसल हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी नहीं होती है, तो उसकी जो कवरिंग शीट होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आता है। सो यूजुअली एज के साथ टेंडिनाइटिस शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन शीट। तो जहाँ पर बोन अटैच होगी टेंडन, उसके एंड पॉइंट्स वहाँ पे पेनफुल हो जाते हैं। यूजुअली जैसे ट्रिगर फिंगर हो गई किसी को, जो एक फिंगर अटकने लग जाती है, या जो टेंडिनाइटिस होती है शोल्डर के अंदर होती है, जो सुप्रास्पाइनल एक मसल होती है उसकी टेंडन इन्फ्लेम हो जाती है, या एल्बो है, हमारे सारे पॉइंट्स जितने भी जो फोरआर्म की जो मसल्स हैं वो एक बाहर के एल्बो के पॉइंट पे आके लगती हैं, वो टेंडन इन्फ्लेम हो जाती हैं।
हमने कुछ भारी सामान उठाया और टेंडन्स क्योंकि बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रही थी, सो दे आर मोर प्रोन टू इन्फ्लेमेशन, और उसकी वजह से वो फिर पेनफुल हो जाती हैं। और एक बार पेन शुरू हो गया तो उसके बाद उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी 6 वीक्स। और 6 वीक्स अगर एक एल्डरली पर्सन के पास ये रहेगा पेन, तो इट विल एक्चुअली लीड टू ए फर्दर लॉन्गर ट्रीटमेंट, बिकॉज इतने लंबे दिनों के लिए पेन किलर्स भी नहीं खा सकते हैं सारे लोग। Basic regular exercises of the muscles is of utmost importance in maintaining your tendons as well. If you are regularly using those muscles to an extent, if you overdo a certain movement, they will further cause inflammation. So regular exercises for the tendons which are more prone to be getting inflamed, उनकी exercise करनी है। Again, जब हम exercise करते हैं, vitamin D भी लेते हैं और enough proteins लेते हैं, तो उनका जो structure होता है वो properly बनता है। इसके लिए भी मेडिसिन आती है जो कि एक टाइप का कोलेजन होता है, जैसे कि कई सारी मेडिसिन टी हील या टेंडो पावर या टेंडो केयर, इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं। दीज आर मेनली फॉर द हीलिंग ऑफ द एंड पार्ट ऑफ द टेंडन्स। सर, पूरी दुनिया में जो अगर कोई एक एक्सरसाइज बनी है जो सबसे अच्छी है वो है वॉकिंग। वॉकिंग एक बच्चा कर सकता है, एक एडल्ट कर सकता है, एक एल्डरली कर सकता है, एक ओल्ड पर्सन कर सकता है। वॉकिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो जॉइंट्स हैं वो एडिक्वेट हैं, जो स्ट्रेंथ उनकी मेंटेन्ड है। बिकॉज वॉकिंग जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा काम इस एज में कोई और नहीं है। या सो इट्स लवली टू नो दैट ऑल ऑफ अस आर वॉकिंग 3 to 4 किलोमीटर्स अ डे, बिकॉज जब हम वॉक करते हैं तो हमारी बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का वो बढ़ता है, हमारा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और डिपोजिशन बढ़ जाता है। So treatment for osteoporosis is walking. 50% of your problem can be sorted out if you are leading an active lifestyle. Even if it is normal, maybe if you an alternate day basis, some supplements at this age is required, right? And you maintain a active lifestyle, regular exercises आप करते चले जाएंगे morning hours, but it is not that कि अगर sunlight में walk करेंगे तो खराब होगा, वो भी अच्छा है, because again sunlight जब proper होती है तो हमारा विटामिन डी भी बेटर मिल जाता है। या अब जो टाइम आया 11 बजे से 2 बजे तक का जो टाइम है, ये तो बेस्ट टाइम है। सर, सब टाइम इम्पोर्टेंट है, आपको जितने बजे निकलना है उतने बजे निकल सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम अगर आप बात करते हैं तो 11 से 2 के बीच में, व्हेन सन इज ओवरहेड 12 बजे। सर बहुत मिनिमम आता है। डायरेक्ट एक्सपोजर आपने एक बीच में कवर लगा दिया तो आप ऑब्वियसली कितना एक्सपोजर कर पाएंगे। या वो ये जो हम डाइट्स और रेगुलर एक्सरसाइजेज करते हैं, इसके अलावा स्मोकिंग, आई डोंट नो हाउ मच हाउ स्मोक एंड टेक एक्सेस ऑफ अल्कोहल, बिकॉज देयर इज अ हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सेसिव अल्कोहल एंड स्मोकिंग, दे ऑल प्रिवेंट आवर बोन स्ट्रेंथ। तो इसको भी अगर हम एक्सेसिव करेंगे तो हमारी बोन हेल्थ डाउन जाएगी। And the most important part of bone health is the holistic approach regarding the mental and emotional well-being. ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी डाइट लेते हैं और हम वॉक करते हैं, लेकिन हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं और इमोशनली ठीक नहीं है, then it also leads to the decrease in the bone health. पेन मैनेजमेंट हमें करना है, लेकिन हमें एड्रेस करना है अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, बिकॉज एल्डरली पर्सन्स, स्पेशली दोज हु हैव देयर किड्स, दे आर ऑलरेडी स्टेशन आउट स्टेशन या बाहर बैठे हुए हैं और घर में हम लोग हैं, और हम लोग आपस में इंटरमिंगल नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट आज का तो हमारा एजेंडा हो गया, कल क्या करना है। तो सोशल एस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द एडवाइस इज कीप मिक्सिंग, कीप अटेंडिंग दीज फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस ऐसे हैं, और बल्कि आप खुद भी ऐसे फंक्शंस आपस में अपने छोटे छोटे गैदरिंग में ऑर्गेनाइज करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करेंगे, देन प्रॉब्ली यू विल बी more educated from each of us. So this plays one of the most important role. Apart from that, जो लोग योगा करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन करते हैं, उससे हमारी बॉडी पे बहुत अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू द क्वालिटी ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। थैंक यू सर।
सर एक मिनट, मैम का क्वेश्चन। Mr. Dr. Sharma, Jayashree Sharma. Yes, ma'am. Nowadays, I am suffering from orthostatic tremors. Orthostatic tremors. Yes. Okay. So, can you advise me any medication, any exercise, and मैम ये जो आपके ट्रेमर्स हैं ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और हमको इसके लिए एक एक्सपर्ट जो कि न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोफिजिशियंस होते हैं, उनसे हमें बात करना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन होती हैं, और जो ट्रेमर्स के लिए कुछ मेडिकेशंस कुछ लोगों के लिए अलाउड हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं अलाउड, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर द डिसीजेज दे आर सफरिंग फ्रॉम। but someone told me that there is no any treatment, research is continued. हाँ, तो मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊंगा कि आज की डेट में जो हमारी न्यूरोलॉजिकल साइंसेज हैं वो सबसे प्रिमिटिव है। इतनी सारी ब्रांचेज इतनी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन न्यूरो साइंसेज में अभी इतना डेवलपमेंट, कोशिश तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी भी वहाँ सक्सेस नहीं मिल पाई है। जहाँ पे कुछ क्रॉनिक डिसीजेज है, जहाँ पे जैसे कि आपने ये बताया अभी रिसर्च चल रही है, तो जो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें हमारे पास कुछ लैक्यूने हैं जिस पे बहुत काम हो रहा है, और प्रोबब्ली ए न्यूरो फिजिशियन वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर योर क्वेरी। What is the treatment for cramps in legs? क्रैम्प्स इन लेग्स, मैम क्रैम्प्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, और साथ में हमारे कुछ जिंक, ये जब हम डेफिशिएंट होते हैं और खासकर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्रैम्प्स आते हैं, तो ये सारे वाइटामिन्स को हमको पूरा करना है। क्रैम्प्स फिर भी पड़ते हैं तो हमको नर्व्स, जो हमारी क्रैम्प्स आ रहे हैं वो एक्चुअली में नर्व्स इरिटेट हो रही हैं, तो नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा हम अगर रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं उनकी, तो हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो निकलते ही तभी हैं जब उनके फंक्शन हमारे मसल्स के अच्छे से होते हैं। तो अगेन इसके लिए अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सर अब जो 12 दिन में ट्रीटमेंट नहीं कर पाए उसको थोड़ा सा इवेल्युएट करना पड़ेगा, और इतनी एक लाइन में बता देना कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वी नीड टू इवेल्युएट योर वट एवर द स्कैन्स और द ब्लड टेस्ट जो आपके हुए हैं उनको देखेंगे, और फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। यू आर द पेशेंट या कोई और पेशेंट है? आपकी वाइफ। तो आप एक बार लेके आएंगे सर, अपोलो नोएडा इज ऑल डेज ओपन, संडे छोड़कर तो सभी, एंड आई एम अवेलेबल ऑल डेज, मॉर्निंग एंड इवनिंग आई एम अवेलेबल। हुआ है केवल अंदर कम हुआ है, बाहर कम हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। एज कितनी है, अगर एज बहुत कम है तो अभी कुछ आपकी, आप तो सर अभी 40 साल के हो। तो आई थिंक सर अगेन आपके एक्सेस देखने पड़ेंगे और आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है। आई थिंक सर हम लोग इंडिविजुअल जैसे प्रॉब्लम्स है ना, उसका आंसर तो हम लोग क्लिनिक पे दें तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमको ना